Hi students, welcome to समझो केमिस्ट्री डिटेल में. Class 10 students, I have made a number of videos for you where I have solved the questions from the sample question papers, and I hope those videos helped you a lot. And because you are to face the board exam very soon, the board exams are knocking at the door, so I have taken another video. I am making another video for you where I will be solving the questions from the sample question paper. So let's start solving the questions without wasting any time. The first question, it is a question paragraph reading type of question where the paragraph is given. You have to read the paragraph and answer the questions. The paragraph has been written and the questions are also written. So let's see what are the question. What is the paragraph? First of all, let us read the paragraph and then we will be solving the questions. The paragraph is, there are different types of chemical reactions occurring around us or being carried out for the benefit of mankind, as for example combination reaction, decomposition reactions, displacement reaction, precipitation reaction, redox reaction, photochemical reaction, etc. Now the questions. First question is, which of the following reactions is not correct? इनमें से कौन सा रिएक्शन जो है करेक्ट नहीं है? The first reaction is between zinc and copper sulfate. The products are zinc sulfate and copper. तो ये तो रिएक्शन होगा बिकॉज जिंक और कॉपर सल्फेट में रिएक्शन इज पॉसिबल एज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. सो जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड व्हाट विल प्रोड्यूस zinc sulfate and copper will be produced. The second reaction you can see, silver reacting with copper nitrate solution and producing silver nitrate and copper. This reaction is not possible because यहाँ पे जो है सिल्वर क्या दिखाया गया रिएक्शन में, सिल्वर इज डिस्प्लेसिंग कॉपर फ्रॉम कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन. इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर. कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर but then silver cannot displace copper from the salt solution of copper. So this reaction will not be correct. यहाँ पे silver plus copper nitrate producing silver nitrate plus copper, this reaction is not correct. The reason you have understood, the reason is silver is less reactive than copper. So silver copper nitrate solution से copper को displace नहीं कर पाएगा. अगर यही reaction उल्टा होता, मतलब ये हो जाता था Cu plus AgNO3, then it would have been possible, the products would have been CuNO3 whole 2 plus Ag. ये प्रोड्यूस हो जाता क्योंकि सिल्वर से कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है. सो कॉपर क्या कर सकती है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में से सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकती है. लेकिन ये जो रिएक्शन है सिल्वर डिस्प्लेसिंग कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन, दिस इज नॉट पॉसिबल. सो दिस रिएक्शन इज नॉट करेक्ट. So what will be the answer? Answer of this question will be number B. This reaction is not correct. बाकी जो reactions are they are correct. Number C में Fe plus CuSO4 producing FeSO4 plus Cu, that is correct. This is correct. Mg plus 2HCl producing MgCl2 plus H2, ये भी होगा. But then ये जो reaction है number B में जो है, this reaction will not take place. So we have found the answer of the first question. Second question. Which type of reaction is involved in the whitewash of walls? Displacement reaction, combination reaction, redox reaction या decomposition reaction. तो इनमें से which reaction, which type of reaction will take place in case of whitewash of walls? Whitewash जब हम walls का करते हैं तो reaction actually क्या होता है? Reaction होता है in between lime and water. तो lime and water मिलके slaked lime बनाता है and slaked lime is the material which is put on the walls. और ये जो व्हाइट वॉश में स्लेक्ट लाइम का यूज है, इसका एक कारण भी मैं आपको बता दूं. कारण यही है कि स्लेक्ट लाइम जो कि CaOH2 है, इट इज ए डिसइंफेक्टेंट एंड दैट इज व्हाई स्लेक्ट लाइम को जो है व्हाइट वॉश में यूज किया जाता है. सो व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इट विल बी? द रिएक्शन विल बी बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्विक लाइम है और उसको पानी में डिजोल्व किया जाएगा, बनेगा स्लेक्ट लाइम जो कि व्हाइट वॉश में इस्तेमाल होता है. तो दिस इज ए काइंड ऑफ combination reaction. So the reaction I am writing in the board and type of the reaction you have understood, it is combination reaction. So this will be the reaction. आंसर में यहाँ पे जगह ज्यादा नहीं है, फिर भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे. इस क्वेश्चन का आंसर होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन भी साथ ही में मैं लिख देती हूँ CaO जो कि क्विक लाइम है, क्विक लाइम है प्लस वाटर
what will be formed? Slaked lime, CaOH whole 2. तो ये बन रहा है slaked lime, and slaked lime is the material which is put on the wall for the whitewashing purpose. So इसके बाद we are coming to the third question. Third question है what is the formula of rust? रास्ट का फॉर्मूला तो जानना चाहिए, ऑल्दो रास्टिंग और प्रोटेक्शन प्रिवेंशन फ्रॉम रास्टिंग ये टॉपिक जो है इस बार डिलीट हो गया है, फिर भी ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है बिकॉज रास्ट का फॉर्मूला इट्स वेरी कॉमन थिंग एंड ऑल ऑफ यू शुड नो इट. सो रास्ट का फॉर्मूला क्या है, इसमें यही है फॉर्मूला ही आपने जो है टिक करना है. करेक्ट ऑप्शन फॉर्मूला कौन सा है ये आपको जानना है. तो रास्ट का फॉर्मूला में देखो, रास्ट इज एक्चुअली व्हाट, रास्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. आप सबको पता है कि आयरन जो है दो वैलेंसी दिखा सकते हैं, एक +2 एक +3. +2 में हम उसको बोलते हैं फेरस और +3 में उसको हम बोलते हैं फेरिक. तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो है रास्ट होता है. रास्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. अब जब हमने बोल दिया कि हाइड्रेटेड है, कंपाउंड हाइड्रेटेड होने का मतलब क्या है, कंपाउंड हाइड्रेटेड होने का मतलब यही है कि उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिसको हम फॉर्मूला यूनिट बोलेंगे, अगर सपोज कि रास्ट में हमने बोल दिया कि इट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, द फॉर्मूला विल बी Fe2O3.x मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. तो Fe2O3 ये है फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला और साथ में x मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है. मतलब वाटर मॉलिक्यूल के नंबर जो है फिक्स नहीं है, इट कैन बी एनी नंबर, बट देन सम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विल बी देयर व्हिच विल बी केमिकली एसोसिएटेड विद फेरिक ऑक्साइड. सो द फॉर्मूला ऑफ रास्ट इज Fe2O3.x molecules of water of crystallization, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. सो हमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, ए नहीं है. ए में बोल रहा है कि Fe3O2xH2, ये नहीं है. फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला ये नहीं है. फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला ये वाला है Fe2O3 और साथ में वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है. सो नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. बाकी आगे करेक्ट नहीं है. उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में. क्वेश्चन नंबर 4 इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ये बिल्कुल आपका डेली लाइफ के साथ कनेक्टेड है. डेली लाइफ में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है फूड आप खाते हो जो कि एसिडिक होता है नेचर में, जैसे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, टोमेटो होते हैं, कर्ड होते हैं, ये सब कुछ जो है एसिडिक है नेचर में. इनमें जो है कॉलम 1 और कॉलम 2 में आपको मैचिंग करना है. करेक्ट ऑप्शन मैचिंग का आपने निकालना है. ABCD करके आपको ऑप्शंस दिए गए हैं. तो जो आपका कॉलम 1 है उसमें फूड मटेरियल का नाम है, कॉलम 2 में जो है एसिड्स का नाम है. जो भी एसिड जो भी फूड मटेरियल में है उसके साथ उसको आपको करेक्टली मैच करना है. यही है क्वेश्चन. तो देखो कॉलम 1 में है ABCD में आपको बताया गया लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड. और कॉलम 2 में है फूड मटेरियल का नाम टोमेटो, लेमन, विनेगर एंड कर्ड. तो ए के साथ अब किसको मैच कर रहे हो, लैक्टिक एसिड जो है किस में मिलते हैं, इनमें से कर्ड में मिलते हैं. बिकॉज जो आपका मिल्क है, मिल्क में लैक्टोज शुगर प्रेजेंट है, तो जब वो कर्ड बन जाता है तब वो एसिडिक हो जाता है, सोर हो जाता है टेस्ट में, तो उसमें एक्चुअली क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है. सो कर्ड और लैक्टिक एसिड को आपको मैच करना है. सो हमने देख लिया ए के साथ 4 मैच हो रहा है. बी के साथ कौन मैच हो रहा है, एसिटिक एसिड जो कि विनेगर के साथ मैच होगा, दैट मींस बी के साथ नंबर 3 मैच होगा. और जो आपका सिट्रिक एसिड है वो प्रेजेंट होगा लेमन में जो कि नंबर 2 में है. और जो ऑक्सैलिक एसिड है दैट इज प्रेजेंट इन टोमेटो. तो ये सारा ऑप्शन जो है ए के साथ 4, बी के साथ 3, उसके बाद सी के साथ 2 और डी के साथ 1, ये ऑप्शंस हमें मिल रहा है नंबर डी में. नंबर डी में देखो A4, B3, C2, D1. सो नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. सो आंसर हमारा हो गया ऑप्शन डी. सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस वन. सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. An alkali metal A gives compound B जिसका मोलर मास आपको बता दिया गया इज इक्वल टू 40. ऑन रिएक्टिंग विथ वाटर, the compound B
गिव सॉल्युबल कंपाउंड सी on treatment with Al2O3 identify A, B, C and give the reactions. दिस इज योर क्वेश्चन। अल्काली मेटल कौन है ये आपको पता होगा कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है जिसमें ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये जो ग्रुप 1 के जो मेटल्स है इनको अल्काली मेटल्स कहा जाता है बिकॉज इनके जो हाइड्रोक्साइड्स है दे आर अल्कालीज, दे आर कॉल्ड अल्कालाइज, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। सो ये ग्रुप 1 का ही कोई एलिमेंट होगा जो कि एलिमेंट ए है, अल्काली मेटल बोल रहा है तो ग्रुप 1 का ही कोई एलिमेंट होगा। जब ये वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तब ये बना रहा है कंपाउंड बी। कंपाउंड बी का जो मोलर मास है वो आपको दे दिया गया है, दैट मींस जो हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है, अल्काली मेटल ए जब वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बना रहा है जो कि एक बेस होगा, वो जो है उसका मॉलिक्यूलर मास आपको दे दिया गया है 40। तो लेट अस फाइंड आउट अल्काली मेटल, ये कौन सा अल्काली मेटल होगा जो कि आपका ए है, ये कौन सा अल्काली मेटल होगा उसको फाइंड आउट करने का बड़ा आसान तरीका है। जो आपका हाइड्रोक्साइड बन रहा है, लेट अस राइट द रिएक्शन ऑफ मेटल एलिमेंट ए जो कि आपका अल्काली मेटल है उसके साथ वाटर का रिएक्शन लिख लेते हैं और उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं। देखो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं एलिमेंट कौन सा है, व्हिच अल्काली मेटल इज एलिमेंट ए, ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एलिमेंट ए जो कि आपका अल्काली मेटल है उसके साथ हम वाटर का रिएक्शन लिखते हैं प्लस वाटर, व्हाट विल बी प्रोड्यूस्ड AOH प्लस हाइड्रोजन। AOH क्या है, हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्काली मेटल ए, उसका हाइड्रोक्साइड है। अब बैलेंसिंग के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो है हमें क्या करना पड़ेगा 2A देना पड़ेगा, 2H2O, ये 2AOH हो जाएगा। तो देखो बैलेंस हो गया है। ऑक्सीजन इधर में 2 है, ऑक्सीजन यहाँ में 2 है, आपका A 2 है, A इधर में भी 2 है, हाइड्रोजन कितना है 4 है, हाइड्रोजन 2 + 2 4, ये हो गया आपका रिएक्शन। नाउ हमें फाइंड आउट करना है कि जो A है वो कौन सा अल्काली मेटल है, और ये तो हमने निकाल लिया कि दिस इज व्हाट इज B, कंपाउंड B। इसको भी हमें पहचानना है कि कंपाउंड B क्या है, आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है आपको ABC, और रिएक्शंस भी आपको देने के लिए बोला है। तो AOH जो है, जो आपका ये हाइड्रोक्साइड जो बना है, कंपाउंड B जो बना है, इसका मोलर मास आपको क्या दे दिया गया, मोलर मास आपको दे दिया गया इज 40। तो इसका मोलर मास कैसे हम निकालते हैं, सपोज करो लेट अस सपोज द एटॉमिक मास ऑफ A, ये जो है X है, तो X प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो दिस विल बी इक्वल टू 40, दैट मीन्स X विल बी इक्वल टू 40 minus 17, so how much it will be 23। so atomic mass of अल्काली मेटल A कितना आ गया 23, और आप सबको पता है 23 इज द एटॉमिक मास ऑफ व्हिच अल्काली मेटल, सोडियम का एटॉमिक मास है 23। सो हमें पता चल गया कि जो अल्काली मेटल का बात यहाँ पे किया जा रहा है एलिमेंट A दैट इज सोडियम। तो सोडियम और वाटर का रिएक्शन हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा अल्काली मेटल जो कि A है ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया, A विल बी सोडियम एंड रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विथ वाटर हम दोबारा लिख लेते हैं यही रिएक्शन को। अभी हम सोडियम डायरेक्टली लिखेंगे 2Na प्लस 2 molecules of water, what will be produced 2NaOH प्लस हाइड्रोजन। तो A आपका Na हो गया, तो B क्या है, B आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो A भी हमने पहचान लिया, B भी हमने पहचान लिया। अब हमें बोल रहा है कि जो B है वो एक जो है Al2O3 के साथ रिएक्शन करके एक सॉल्युबल कंपाउंड C बना रहा है, तो C को भी आपने आइडेंटिफाई करना है। तो B तो आइडेंटिफिकेशन हो गया है, इसके साथ Al2O3 का रिएक्शन आप लिख लेते हैं, Al2O3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड
जो कि आपका कंपाउंड बी है, व्हाट विल बी फॉर्म्ड, दिस कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड NaAlO2, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। व्हाट इज द नेम, सोडियम एल्यूमिनेट। और साथ में क्या बनेगा, वाटर। अभी इसको बैलेंस करने के लिए हम यहां पे अगर 2 दे दें तो देखो सोडियम 2 होगा तो यहां पे भी आपको 2 देना पड़ेगा। तो नाउ सी ऑक्सीजन 3 + 2 5, 2 2s are 4 + 1 5, हाइड्रोजन 2, इट इज बैलेंस्ड। सो दिस इज कंपाउंड सी, ये हमारा हो गया है। सो हमने पहचान लिया ए जो है सोडियम मेटल है, बी क्या है, बी इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड व्हाट इज सी, सी इज NaAlO2, जो कि हमने लिख दिया सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन का। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। How it is prepared? How it is different from gypsum? तो ये क्वेश्चन है, आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए बोल रहा है और ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है और ये जिप्सम से किस तरह से डिफरेंट है। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको इसमें देना है। तो सबसे पहले तो हम लिख ले कि व्हाट इज द फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिकली क्या है, इट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मतलब कैल्शियम सल्फेट का 1 फॉर्मूला यूनिट के साथ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज देयर। सो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये है केमिकली, और इसका फॉर्मूला है फॉर्मूला ऑफ पीओपी, शॉर्टली लिख देते हैं पीओपी, इट इज CaSO4 डॉट हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। केमिकली इसको क्या कहा जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नाउ how it is prepared, next part of the question, how it is prepared, it is prepared from gypsum by heating gypsum at 373 केल्विन टेम्परेचर। 373 केल्विन टेम्परेचर में अगर हम जिप्सम को हीट करते हैं तो जिप्सम विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लास्टर ऑफ पेरिस, एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब ये कन्वर्ट होगा तो जिप्सम का फॉर्मूला में देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसमें से 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विल बी गॉन एंड हाफ मॉलिक्यूल विल बी लेफ्ट। हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विल बी लेफ्ट विद कैल्शियम सल्फेट, 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, एंड दैट्स हाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम gypsum by heating gypsum at 373 Kelvin temperature. So I am writing the reaction in the board. Preparation of plaster of Paris. Gypsum CaSO4, 2 molecules of water of crystallization इसमें है। इसको 373 केल्विन टेम्परेचर में अगर हम हीट करते हैं तो बनेगा CaSO4 डॉट हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और 1.5 molecules of water of crystallization will be removed. So this is how POP, but the plaster of Paris is prepared from gypsum. Third part of the question is how it is different from gypsum. प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में आपको डिफरेंसेस बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में डिफरेंसेस में एक पॉइंट तो आप अभी फॉर्मूला से ही बता सकते हो, जो कि आपका जिप्सम है, ये आपका जिप्सम है। जिप्सम में one formula unit of calcium sulfate contains 2 molecules of water of crystallization.
2 molecules of water of crystallization are there in one formula unit of gypsum, in one formula unit of calcium sulfate, जो कि gypsum है, it is a mineral. एंड ये जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, POP है, इसमें क्या है, वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट में हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है. सो दैट इज हाउ वन पॉइंट वी हैव ऑलरेडी गॉट कि जिसमें हम जो है जिप्सम और POP को डिफ्रेंशिएट कर सकती है. जिप्सम में वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट कंटेन्स 2 molecules of water of crystallization, and in plaster of Paris one formula unit of calcium sulfate contains half molecule of water of crystallization. That is one point of difference. Another point of difference you can say the gypsum is a mineral, it is found in the nature. gypsum एक मिनरल है जिसको हमें नेचर में मिलते हैं, लेकिन जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो कोई मिनरल नहीं है, उसको हमें मैन्युफैक्चर करना पड़ता है फ्रॉम जिप्सम. हमें जिप्सम से उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ता है. सो ये पॉइंट भी आप दे सकते हो कि जिप्सम इज अ मिनरल, इट इज फाउंड नेचुरली, वेयर एज प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट. ये है दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस. तीसरा भी आप दे सकते हो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो आपको सबको पता ही है कि क्या है यूज. प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है इट हैज गॉट ए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग विथ वाटर. वाटर के साथ, वाटर जैसे इसमें मिक्स कर दिया जाता है तो एक हार्ड मास में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं प्लास्टर. उसको डिफरेंट टाइप का यूजेस है, उसको इट कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स. इसको मोल्ड बनाने के लिए जो है यूज किया जाता है, जैसे कि पॉटरी में, उसके बाद सिरेमिक्स में मोल्ड बनाने के लिए यूज किया जाता है. लेकिन जिप्सम का ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिप्सम से ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता है. इट डज नॉट हैव दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी. सो दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस. सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन वी हैव डन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. स्टेट द रीजन व्हाई कार्बन कैन नीदर फॉर्म C+4 cation और C-4 anion, but forms covalent compounds. Also state the reasons to explain why covalent compounds number 1 are bad conductors of electricity. Number 2 have low melting point and boiling point. वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. कार्बन जो है कौन सा ग्रुप का मेंबर है? ग्रुप 14 का मेंबर है, फर्स्ट मेंबर है ग्रुप 14 का. अब कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? सब जानते हो कि कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है. अब कार्बन को अगर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेना है तो या तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन जो है गेन करना पड़ेगा या तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना पड़ेगा. तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने से क्या होगा? C+4 कैटायन बनेगा, और 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर ये गेन करते हैं तो C-4 एनायन बनेगा. अब ये दोनों ही जो है पॉसिबल क्यों नहीं है? व्हाई कार्बन नॉर्मली डज नॉट फॉर्म C+4 कैटायन और C-4 एनायन, उसी का ही जो है रीजन आपको हम बताएंगे अभी. तो C+4 कैटायन जब बनेगा तब देखो कार्बन का जो न्यूक्लियस है उसमें उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है. तो उसका न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन 6 है, बाहर में इलेक्ट्रॉन जो है 6 है.
अब अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं तो एक तो जो है पॉइंट क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए उसको काफी सारा अमाउंट में आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए। अब एक पॉइंट एक टर्म जब मैंने आपको बता दिया कि आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो वो थोड़ा सा आपको बता दिया, शायद आपने पढ़ा होगा कि अगर आपको पता नहीं है तो ये बात सुन लो कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसको कहा जाता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द energy required to remove the electron from the outermost shell। outermost shell में जो इलेक्ट्रॉन है जो सबसे लूजली बाउंड है न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस उसको बहुत ही लूजली होल्ड करके रखा है, उसको रिमूव करने के लिए जितना अमाउंट में एनर्जी देना पड़ेगा उसी को कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एक एक करके अगर 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा कार्बन को और C+4 केटायन बनाना होगा तो कार्बन को बहुत सारे अमाउंट में आयोनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए जो कि केमिकल रिएक्शंस में अवेलेबल नहीं होते हैं। ये एक पॉइंट है कि C+4 केटायन बनना पॉसिबल नहीं होता है। दूसरा रीजन ये है कि 6 प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, बाहर से अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो इलेक्ट्रॉन रह गया 2, तो इसके कारण भी न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स और बाहर में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, इसके कारण भी जो है ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। और जनरली जो हाईली चार्ज स्पीसीज है वो बनना जो है एनर्जेटिकली वो पॉसिबल नहीं होता है, एनर्जेटिकली फेवरेबल प्रोसेस वो नहीं होता है। तो ये 2-3 पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि क्यों कार्बन जो है +4 आयन नहीं बनाता है। मैंने क्या क्या बोला आपको पॉइंट, पहले मैंने बोला कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन्स विल बी वेरी हाई, बिकॉज एक एक करके आपको चारों इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो उसके लिए काफी सारा अमाउंट में आयोनाइजेशन एंथैल्पी कार्बन को चाहिए जो कि नॉर्मली केमिकल रिएक्शन से कार्बन को नहीं मिलेगा, नहीं मिलते हैं नॉर्मली। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है 6 है। अगर 6 प्रोटॉन न्यूक्लियस में होगा और बाहर से अगर चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देता है तो 2 इलेक्ट्रॉन पड़ा रहेगा, ऐसे में भी वो बहुत ही अनस्टेबल स्पीसीज हो जाएगा बिकॉज इट्स साइज इज वेरी स्मॉल, इट्स साइज इज नॉट वेरी बिग। दूसरा है कि C-4 एनायन क्यों नहीं बना सकते हैं। C-4 एनायन बनाने के लिए देखो उसको इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। तो मान लो पहले उसने जो है 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या आयन बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन अगर उसने गेन कर लिया तो C- आयन बनेगा। 1 इलेक्ट्रॉन इफ इट गेन्स देन इट विल फॉर्म C- आयन। नाउ इफ यू वांट टू ऐड 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू इट and you want to form C-2 आयन, तो ये जो C- आयन ऑलरेडी फॉर्म हुआ है और इलेक्ट्रॉन जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है जो इसने गेन करना है, ये दोनों का चार्ज सेम है। इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि इज नेगेटिवली चार्ज एंड C- आयन में चार्ज भी नेगेटिव है, तो ये दोनों में होगा रिपल्शन और ये रिपल्शन को ओवरकम करने के बाद ही जो है इलेक्ट्रॉन ये गेन कर पाएगा एंड दैट इज एनर्जेटिकली फेवरेबल प्रोसेस ये नहीं है। दोनों में रिपल्शन ओवरकम करना है और उसके बाद ही जो है उसको C-2 आयन बनाना है, उसके लिए उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और ऐसे ही अगर उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स टोटल अगर गेन करना है और C-4 आयन अगर उसने बनाना है तो चारों इलेक्ट्रॉन आपने ऐड करना है, उसके लिए बहुत सारे अमाउंट में एनर्जी उसको देना पड़ेगा। इट हैज टू एब्जॉर्ब अ लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो दैट इज व्हाई आल्सो दिस काइंड ऑफ हाईली चार्ज स्पीसीज C+4 या C-4 इनका बनना जो है एनर्जेटिकली फेवरेबल प्रोसेस नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के लिए भी बहुत सारे अमाउंट में एनर्जी देना पड़ता है एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन ऐड करना भी उतना ही मुश्किल है। इलेक्ट्रॉन ऐड जब करोगे तब भी एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो वही बात है, रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए बहुत सारे अमाउंट में एनर्जी जो स्पीसीज है उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तभी जो है हाईली नेगेटिवली चार्ज्ड आयन वो बना सकते हैं। सो बोथ द प्रोसेसेस आर नॉट एनर्जेटिकली फेवरेबल एंड दैट इज व्हाई कार्बन गोज फॉर व्हाट, कार्बन गोज फॉर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। दूसरा एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट के एटम के साथ या खुद के साथ ही जो है अपना वैल्यूएशन के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और शेयरिंग के थ्रू ही जो है वो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन गेन करते हैं। तो दिस इज हाउ कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स ओनली, इट डज नॉट फॉर्म
ionic compounds. Now I will tell you there are some compounds which are not very common, जहां पर कार्बन जो है C माइनस आयन फॉर्म में जो है कार्बन एग्जिस्ट करता है। ऐसा कंपाउंड्स 2-3 जो है बनते हैं जिसमें कार्बन इज प्रेजेंट एज C-4 आयन। तो मैं एग्जांपल आपको लिख देती हूँ कि जो 2-3 टाइप का जो कार्बाइड कंपाउंड्स है, मेटल के साथ कार्बन का डायरेक्टली कॉम्बिनेशन है, जिसमें मेटल जो है कैटायन फॉर्म में रहते हैं, कार्बन जो है एनायन फॉर्म में रहते हैं, और वो जो है C-4 आयन फॉर्म में रहते हैं। तो उसका 2 एग्जांपल मैं आपको दे रही हूं, where carbon is present as C-4 ion. Examples of such compounds are Be2C. Be2C में देखो बेरिलियम कार्बाइड है, बेरिलियम कार्बाइड में कार्बन इज प्रेजेंट एज C-4 आयन। बेरिलियम का चार्ज क्या है आपको पता है, बेरिलियम का चार्ज +2 है, तो 2 बेरिलियम एटम, तो +4 हो गया, कार्बन इज प्रेजेंट एज C-4 आयन इन दिस केस। एंड वन मोर आई विल गिव यू एग्जांपल, SiC। SiC इज द कंपाउंड जिसका नाम है सिलिकॉन कार्बाइड। तो सिलिकॉन कार्बाइड में भी सिलिकॉन +4 में है और कार्बन जो है -4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इस तरह से कार्बन 2-3 कंपाउंड ऐसे बनाती है जिसमें कार्बन जो है C-4 आयन हिसाब से प्रेजेंट है, बट देन इट इज नॉट दैट कॉमन। कार्बन का ज्यादातर कंपाउंड्स कोवैलेंटी है, बिकॉज कार्बन के लिए +4 आयन बनाना -4 आयन बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सो हार्डली इट कैन फॉर्म C-4 आयन, एंड देयर आर ए फ्यू, वेरी फ्यू कंपाउंड जहां पर कार्बन जो है -4 आयन बनाता है और एज -4 आयन वो प्रेजेंट है। कंपाउंड्स के एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, ये कार्बाइड कंपाउंड्स है, मेटल के साथ कार्बन का कॉम्बिनेशन है। आपको पता है कि मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, सो मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स, metals form the cation and carbon gains those electrons and forms the anion. So ये जो compounds है, इस टाइप का compound ज्यादा नहीं है, कुछ कार्बाइड compounds है जिसमें कार्बन as C-4 ion present है। तो let's go to the next part of the question. Next part of the question में ये बोला है कि also state the reasons to explain why covalent compounds are bad conductors of electricity, have low melting point and boiling point. तो ये reason हमें अभी एक्सप्लेन करना है कि कोवैलेंट कंपाउंड जो है व्हाई दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे बहुत सिंपल है रीजन, कोवैलेंट कंपाउंड्स में कोई आयन नहीं होते हैं। Covalent compounds, they do not have any ions in them, and that is why covalent compounds they are poor conductors of electricity. They do not conduct any electricity. Ions होंगे तब ना वो चार्ज कैरियर का काम करेगा। There are no ions, only molecules are there, and that is why the covalent compounds they do not show electrical conductivity. They do not conduct electricity. They are bad conductors of electricity. And another part of the question is why covalent compounds they have got low melting point and boiling point. Covalent compounds में जो molecules है, उन molecule के बीच में जो forces of attraction है, that is the weak van der Waals forces of attraction, and weak van der Waals forces of attraction होने के कारण ही जो है इनका melting point, boiling point जो है low होते हैं। अगर ionic compound होगा तो ionic compound के केस में क्या है, the forces of attraction are very strong. Oppositely charged ions के बीच में जो है electrostatic force of attraction होता है जो कि strongest माना जाता है। लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल के बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर देयर, जिसके कारण कोवैलेंट कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा दे आर वेरी लो। तो दिस इज व्हाट इज दिस क्वेश्चन। Please do subscribe my channel, join me so that I can help you more and more. Thank you for watching the video.